अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो यही है वो सेंट जॉर्ज चर्च। सो गाइस नाउ वी आर इनसाइड द स्ट्रीट द ओल्ड। चलो चलो सीधे सीधे। जो जीसस थे वो जब बिल्कुल 3 मंथ्स के थे तो उन्होंने उनकी फैमिली ने यहाँ पे 3 टाइम गुजारा था। सो गाइस इस वक्त मैं उसी चर्च में बैठा हुआ हूँ और इसी के नीचे वो केव है जहाँ पे यहाँ पे मोजेज जो थे वो उन्होंने यहाँ पे टाइम निकाला था। यहाँ पे तुनखामेन का इन्होंने मास्क बना। इस वक्त अब हम हैं ममीज वाले अपने म्यूजियम जो वी आर इनसाइड द सेंट जॉर्ज चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च। आप देखो इस साइड में लगा हुआ वर्जिन मैरी चर्च जो इस साइड में है और सेंट जॉर्ज चर्च जो इस साइड में है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यही है सेंट जॉर्ज चर्च का। सो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो यही है वो सेंट जॉर्ज चर्च। Okay, now we are considered inside the Roman fortress itself. That's why this is the enclosure wall of the Roman fortress, the old one from the 1st century AD. This church is one of the Greek Orthodox church inside Egypt over here. That's why you can see the Greek flag and the Egyptian flag over there. And this is the seat of the Greek Patriarch staying inside Egypt over here. Even we're having some semi-statues for the Greek Patriarchs, this one from all time. Actually, this is this monastery over here is dedicated for Saint George. And Saint George was one of the soldiers inside the Roman army inside over here. He embarrassed Christianity. That's why they're starting to torturing him, putting him inside the prison, using a very bad tools in actually to torturing him over here. Finally, they cut his head. To commemorate the place that they putting Saint George inside the prison, they built a small church at the bottom over here in the same place of the prison, containing inside the original tools that the Roman using to torturing Saint George, like a sliver having nails, a well having arrows in order to stick it to his body, and the cross also over there to crucify him. In the end of the 12th century, the Greeks built another rounded church over there. It is well decorated from inside, and the most beautiful ceiling you can find over there with Jesus the Christ depicted in the ceiling with a lot of angels that surrounded him, the disciples and the writers of the Bible inside the church. This is still active church inside over here and using by the Greek community living inside Egypt, and to recognize that we are above the old street over here. If you look from this side, you'll find the street down. But first, you can go inside the small church to see the original tools, to see the prison, and then go into the upper church, this one over there, to can see the beautiful ceiling inside it. We will have 15 minutes. Right now, 10:25. We will back to 10:4. Okay, if you want to stand over here, all of you first, taking the photo. Yeah, and here to stand yours, then I want to if I stand here.
सो गाइस ये बेसिकली पहले फोर्ट्रेस था जो सेंट जॉर्ज जो था वो इन आर्मी में था जो आके जिसको बाद में डिफीट करने के बाद में जब मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आए थे तो उन्होंने काफ़ी टॉर्चर वगैरह किया था उसको, उन्हीं की याद में ये पूरा चीज़ें बनी हुई है और उससे रिलेटेड चीज़ें सारी यहाँ पे रखी हैं जैसा अभी गाइड को आपने सुना ही होगा। सो One, two, three. So guys, now we are inside the street, the old Cairo street. अब यहाँ पे चारों आप देखो कैसे सोवेनियर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पुरानी पेंटिंग्स, इमेजेस, हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स एंड ऑल। सो ये देखो आप, ये क्या आप देखो मेरे पीछे देख रहे हो जो हम इंटर किए हैं अभी वहाँ से, ये वो प्लेस है जहाँ से भी हम इंटर किए हैं और जैसे स्ट्रीट में भी हम जा रहे हैं आगे और इनके साथ में आप देखो ये सारे जो सोवेनियर शॉप्स हैं सब पुराने टाइम्स के पिक्चर्स, बुक्स और सारी चीज़ें हैं। ये ओल्ड आपको देखो कि किस टाइप के आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पिरामिड की ये सोवेनियर आप ले सकते हो, इस आई एम श्योर ये हाईली एक्सपेंसिव होंगे लेकिन आप इनको देखो क्या कमाल की है। ये ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए चले आएंगे छठे वाले को छोड़ना नहीं है। चलो चलो सीधे सीधे। वी आर इन ए ग्रुप सो वी हैव टू फॉलो द फ्लैग। जो हमारा जो ग्रुप लीडर है वो उसको लेकर चल रहा है, बट आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने ग्रुप से पीछे ना हो। पूरे देखो टूरिस्ट हैं यहाँ पे पूरे भरे हुए हैं। अभी हम इंटर कर रहे हैं द केविन चर्च एंड द मार्टियर ऑफ रिलीजन नोन एज अबू सरगा। आप ये देखो पर में हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे जब हम इसमें इंटर कर रहे हैं तो
Inside the Roman army, but they tortured them until they killed them after that for embarrassing the Christianity. We built this church to commemorate the place that Jesus the Christ and Virgin Mary stayed here for 3 months. There is a holy water well inside, beside it a cave, and we built the holy church above it to having the same design like the basilica design. And actually, during this time, they were using the bricks to put in between the stones over there, using mud and sand in order to making them attached together. There wasn't any kind of cement. Also, they were using the stem of the palm trees to making the ceiling to be looks like that. The whole area was suffering from underground water, and they using some chemical materials to get rid of this water. Unfortunately, the chemical materials attach it to the wood and making the whole church little bit smelly from inside. Once we go through the door, we'll find a basin in the ground. This was used in order to put the holy oil to baptize the children over here. Even we're having a baptismal font from the 4th century AD. The oldest icon over here, it is from the 13th century AD, but most of the icons after that, it is from the 18th and 19th century AD. We will go inside while they convert this cave to be looks like the same design of the Basilica Church. By making rows of columns over there, you will notice also all of the columns inside the church, it is marble columns, having the capital of the different flowers from the Roman time. Because it was old temples, and once it is demolished, they take the marble column and put inside the church, except one column, it is red granite from one of the ancient Egyptian temples. Go inside. Not be sleep on the ground. It's a bed. They stay like this here for 3 months. So you go from here and hold on. You go and you go up. So you take almost along here. Oh my god, it's so you don't maybe that's You'll find the library here containing it's a public language in the Palestine and Arabic language. Library containing very old books from the medieval time over here. We'll also be having the water well and the grass. You'll go down over there, come outside from the other side. Now I will be meeting you at the exit over there. Here we have the water well and the grass. You will go down and come outside from the other side. How long stay here? It's only also is making black white. Yeah, here. Down. You're still going more down. But watch your head, because when you're going inside the cave, it's very short over there. You will see the water well and the cave in which Jesus Christ. Pero
सो गाइस अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे जब जो जीसस थे वो जब बिल्कुल 3 मंथ्स के थे तो उन्होंने उनकी फैमिली ने यहाँ पे 3 मंथ्स गुजारा था। सो वर्जिन मैरी और जीसस के फादर और वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने 3 मंथ्स गुजारे थे। तो इस प्लेस का ये हिस्टोरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप देखो यहाँ पे इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो जगह है। पीछे मैं वेल का एक पिक्चर भी लगा दूंगा जहाँ से वो लोग पानी यूज करते थे उसको करने के लिए। यही वो जगह है। आप देखो इस छोटे से प्लेस में जीसस क्राइस्ट जब वो 3 महीने के थे तो वर्जिन मेरी और अपने फादर के साथ में यहाँ पे उन्होंने टाइम गुजारा था। चलिए अभी हम बाहर चलते हैं इसको। मैं जस्ट बाहर निकल रहा हूँ इस केव से। Déjame coger la falda y que ellos. बाहर निकलने के बाद यहाँ पे सोवेनियर शॉप है और फिर हम इस चर्च में आते हैं। यहाँ पे वापस हम इस चर्च में निकल आए हैं जहाँ से हम अभी इन किए थे। तो आप देखो ये वो जगह है। इसके बाद में से सो गाइस इस वक्त मैं उसी चर्च में बैठा हुआ हूँ और इसी के नीचे वो केव है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो थे अभी जो आप लोगों ने देखा। मैं अगेन बता रहा हूँ 3 मंथ्स उन्होंने यहाँ पे गुजारे थे जब वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये है उस जगह की इम्पोर्टेंस। और आप देखो ये कैसे बना हुआ है चर्च। ये जो आप देख रहे हो इनका जो आप देखो ये जो ऊपर का जो आप ये देख रहे हो जो डोम बना हुआ है ये वुड का है। और ये जो आप देख रहे हो जहाँ से कि जो यहाँ के जो बिशप्स या जो यहाँ के पादरी होते होंगे वो यहाँ से ही लोगों को जो भी उन शिक्षा होती है जो प्रेयर कराते हैं वो इस प्लेस से। ये जो आप देख रहे हो जो स्टोन जो मार्बल का बना हुआ है यहाँ से वो करवाते थे। तो ये वो जगह है। ऊपर देखो आप कैसे ये सारे जो है वुड के बने हुए हैं उस टाइम पे। ऊपर में बालकोनी है। प्रेयर के टाइम पे लोग यहाँ पे भी होते होंगे। तो ये है इस जगह की खासियत। और ये जो यहाँ पे सारे लोग बैठकर प्रेयर करते हैं। तो ये आप देखो ये है इस जगह की इम्पोर्टेंस जहाँ मैं भी बैठा हुआ हूँ। यहाँ देखो ये किस टाइप से आपको जीसस की कार्विंग्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप से कार्विंग्स है। यहाँ पे इन पिलर्स की कार्विंग देखो, इनमें जो पेंटिंग्स हैं अब तो ये रह नहीं गए हैं लेकिन इनमें पूरी की पूरी एक हिस्ट्री दबी हो चुकी हुई है यहाँ पे। सो गाइस अभी जो हम हैं यहाँ पे ये बेसिकली सेनेगल एक ज्यूइश कम्युनिटी की किसी टाइम पे यहाँ पे मोजेज जो थे वो उन्होंने यहाँ पे टाइम निकाला था इस कायरो सिटी में। तो एक किसी ज्यूइश फैमिली ने इसको बाद में परचेज किया और परचेज करने के बाद में इसे कन्वर्ट किया गया सेनेगल के ये में। तो जैसा कि अभी हमारे ये मानना है कि अब कोई कम्युनिटी बची तो नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का। तो अब लोग जो हैं इस सेनेगल को यूज करने के लिए केवल एक ही फैमिली है जो यूज कर रही है इसे। तो उसी को देखने के लिए लोग आते हैं। और ये जो आप सामने आप जो देख रहे हो ये सब ये हमारे उसी फोर्ट्रेस के हिस्सा है बस। तो अब ये देख लो बेन एजरा सेनेगल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है, यहीं से इंटर करते हैं सेनेगल में। यस। और ये जो है स्ट्रीट है जो सामने से जो स्ट्रीट आती है उसके बाद में आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो इस जगह पे। तो ये है वो जगह यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं एक स्टोर में जो कि बेसिकली यहाँ पे
हर तरह के ऑर्नामेंट्स और ये सेल कर रहे हैं, जिनमें गोल्ड और सिल्वर और बाकी चीज़ों से मिलाकर ये जो लोकल आर्टिफैक्ट्स हैं इनकी सारी चीज़ें ये मिल रही है यहाँ पे। इसके लिए हम आए हैं, आप देख लो। परचेस तो हमें कुछ करना वैसे है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखला देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। काफ़ी यहाँ पे तूफान का इन्होंने मास्क बनाया है, सीम्स लाइक फ्रॉम द ब्रोंज। क्रॉकरीज हैं, बहुत तरह के क्रॉकरीज हैं यहाँ पे, स्टैचूज हैं। It's from this way down. So Muhammad will explain your direction, then feel free to do whatever. After this, please get closer to Muhammad. Good morning, everybody. We just publish my Okay, we have here a small version of the music. Just a replica of the original one. You can take it around here. If you would like to do a picture, if you don't want to, direct downstairs. Yeah, come on. This way, please. सो हर एक तरीके के स्टोन्स हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे नीलम पन्ना सारे रखे हुए हैं, जामुनिया भी मुझे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे स्टोन्स यहाँ पे अवेलेबल है। में ये है वो जिसमें कि इजिप्शियन लैंग्वेज में जब आप पेंडेंट बनवा सकते हो इसका।
ये अभी जैसे ये $110 सिल्वर के 2 पड़े हैं, ये अभी इन्होंने लिया है अभी अभी, साहिब भाई ने अभी अभी लिया है। हाय। What happened to the morning? Some of the solutions that we taken advantage of after 5, we did it with the line. They also divided the whole year according to the line. They divided the whole year for 3 seasons: the plant season, harvest season, and the cultivation season according to the line. And starting mixing the wool and the tune, some of the seeds are one day collecting all the corpus and like that. And each in order to some of the most important thing is that but only they making for them replicas like that. Is everyone making his own job, and they're taking these statues in order to work inside The cow was a goddess called Goddess Hathor, and the Goddess Hathor is the goddess motherhood inside ancient Egypt. She is the one who took care of that Horus during the conflict between Osiris and Seth. Is the managed making Habiba. There were a kind of planet called papyrus. They using this papyrus planet in order they say she told
पहले टाइम में किस टाइप से मॉडिफाई किया जाता था, ये उसी का एक ताबूत है यहाँ पे। ये अंदर इस टाइप से रखे जाते थे और ये फिर इसको कवर किया जाता था। Why is the only part they make this shape? Charges, this is a part of a real charge usually during the battle. Also, we can see a captive starting over there. Over this is the captive was based on behind the hand, behind them. In order to read the rest of सो ये चैरियट है विच उस टाइम पे जस्ट यूज किए जाते थे। सो गाइज ये म्यूज़ियम है, यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम है जिसको भी हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम की हिस्ट्री और चीज़ों को डिपिक्ट करती हैं। आप जैसे देखो यहाँ पे उस वक्त नील नदी जो बहती थी उसका डिपिक्शन किया गया है यहाँ पे, किस तरीके से नदी होती थी और उसके आसपास की सिटी कैसी है आज के टाइम पे। और ये जो पूरी सभ्यता जो उस टाइम पे जो डेवलप हुई थी, ये उसके सारे जो पार्ट्स हैं जो यहाँ पे खुदाइयों में मिले हुए हैं। पूरा इजिप्ट इन चीज़ों से भरा पड़ा है। आपको कितनी चीज़ें हम दिखाएं, जब तक आप यहाँ आओगे नहीं आपको उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा। हर एक चीज़ दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तब आपको एक पता चलेगा कि उस टाइम पर, जब आप इस नज़रिए से देखते हो चीज़ों को कि उस टाइम पे ऐसा उन लोगों ने टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने डेवलप किया हुआ था और पूरी जो ह्यूमैनिटी थी वो किस तरीके से उस वक्त काम करती थी, ये अपने आप में अनूठा है सारी चीज़ें देखने के लिए। तो हम भी वही देख रहे हैं। जो बिगेस्ट थिंग है वो यहाँ पे मम्मी है, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं उसके फोटोग्राफ तो आप लोगों के लिए नहीं ले पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू जितना मैं हो सके शो कर पाऊँ। बट आप ये मान के चलो कि अभी भी आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी देखने को। आप जब तक आओगे नहीं यहाँ पे तक समझ में नहीं आएगा चीज़ें। सो गाइस अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये उस टाइम के बनाए हुए ज्वेलरीज हैं जो उस वक्त के किंग्स और वहाँ उस टाइम के जो प्रिंस थे वो इनको यूज कर रहे थे। दूसरे जो ट्रेजरी फॉन्ड 1989 इनसाइड पॉटरी वेसल।また日本も同じだと思いますけど、なかなか人の手にコイン。
One of the most important pieces inside this museum. Actually, this ring is called the Mahmal. Mahmal is the tent used by the Muslims in all time in order to transfer. And the fruit they make here. सो गाइस इस वक्त अब हम हैं ममीज़ वाले अपने म्यूजियम जो सेक्शन है उसमें, और यहाँ पे 20 ममीज़ रखे गए हैं जिनको हम देखने के लिए जा रहे हैं। शायद वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं इस वक्त जो एट्रियम है वहाँ पे जो इन्होंने डिपिक्शन किया हुआ है इमेजरी के थ्रू, मैं उसे दिखा रहा हूँ। आप उसको एक बार देखो, फिर एक बार देखते हैं अगर अंदर हम देख पाते हैं। सो गाइज ममीज सेक्शन में तो हमें लेने नहीं दिया गया कोई भी वीडियोज, बट इट इज़ इनसेन। आप एक बार ममीज को देखना ना अपने आप में एक इनसेन एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाते कि उस टाइम पे जो भी लोग थे जो जिनकी डेथ होती थी, जितने भी किंग्स थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी उनको इस तरीके से ममीफाई करते थे और उनको प्रिजर्व करते थे सारी चीज़ों को। इस वक्त हम हैं टेक्सटाइल गैलरी में, इनके जो डिफरेंट टाइम्स और में कैसे इनके ड्रेसेस और इनके जो क्लोथ्स और जो चीज़ें जो यूज कर रहे थे उसको कैसे इन लोगों ने इवॉल्व हुए, उसको देखने के लिए हम आए हैं। बट ममीज इज़ ममीज, आई मीन आप उसको देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देखो ये ऊपर में ही सारे इनके जो टेक्सटाइल गैलरी है जिसमें डिफरेंट टाइम में कैसे इवॉल्व हुए हैं ये लोग क्लोथ्स के मामले में, वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। सो गाइस वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर जस्ट आउट फ्रॉम द ममीज गैलरी। ममीज इज इनसेन गाइज, अब क्या बताऊँ उसके बारे में। आप उसको जब देखते हो वो इनसेन है, इनसेन लेवल ऑफ आपको एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे। कैसे उस टाइम पे लोगों ने ममीज को ममीफाई किया, इतने सारे किंग्स को, और उनको अपने आप में इनसेन एक्सपीरियंस है वो। मतलब मेरे पास में दूसरा वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। अनबिलीवेबल, आपको मतलब आपको विश्वास नहीं होता है चीज़ों को देख के। 20 ममीज हैं वहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टीज की हैं वहाँ पे। इस वक्त हम हैं टेक्सटाइल गैलरी में, यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि कैसे इनके जो टेक्सटाइल्स थे वो कैसे विद टाइम इवॉल्व हुए और कैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिफरेंट टाइम में अपने जो टेक्सटाइल क्लॉथ्स जो थे उस टाइम के कैसे इवॉल्व हुए, उनको देखने के लिए हम आए हैं। बट ममीज आई मीन 2000 इंसान मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो आप लोग कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आओ देखने के लिए यहाँ पे, और जब ममीज़ को देखकर आपको बिलीव नहीं होगा। वैसे तो ममीज आज के टाइम में कई सारे दूसरे जगहों पे भी रखे हुए मिल जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ का देखते हो वो एक अलग ही है। The covering of the Kaaba, these pieces of the Kiswa Kaaba including the belts and curtain, the door। So ये काबा में यूज किया गया ये है जो ये आप देख रहे हो मेरे सामने। मोहम्मद अली डायनेस्टी 1220 to 1372, 1805 से 1953 AD का ये है। उस टाइम में कैसे टेक्सटाइल डेवलप थे यहाँ पे, ये उस टाइप की चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। देखिए किस टाइप से वो उस टाइम पे वुड के डोर्स वगैरह बनाए जाते थे, ये विंडोज वगैरह हैं उस टाइम के। काफ़ी इवॉल्व सोसाइटी थी उस समय की इनकी। ये उस टाइम के ही ऑर्नामेंट्स हैं।
ये किंग की ड्रेस है उस टाइम की, क्वीन की, सॉरी। प्रिंसेस जिनेम हानिम। देखिए एक और ड्रेस है प्रिंसेस की, लेडीज आउटफिट। उस टाइम के जो लेडीज आउटफिट कैसे होते थे आप देखिए। ये आज के एम्ब्रॉयडरी और वर्क को भी ये पीछे छोड़ देंगे। प्रेयर कारपेट है उस टाइम की। कलेक्शन ऑफ कम ब्रूचेज एंड माउथ पीसेज बॉक्सेज। उस टाइम के रूलर्स के ड्रेस हुआ करते थे और डिफरेंट पोजीशंस के लोग। द सर्विस फैशन ड्यूरिंग द मोहम्मद अली डायनेस्टी। तो ये जो सर्विस में होते थे लोग, जो कि राजाओं के साथ काम करते थे, उनके डिफरेंट लोगों के लिए कैसे क्लॉथ्स होते थे, ये उसको डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। ये ऑफिशियल प्रोसेशन के टाइम इस टाइप से इनको ड्रेसिंग किए जाते थे। ये आई थिंक ये वॉचेज हैं उस टाइम के। यस, कलेक्शन ऑफ पॉकेट वॉचेज। देखिए क्या जबरदस्त दिखते हैं। तो चलिए गाइस, अमेजिंग रहा हमारा ये इजिप्ट का टूर। अभी थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। हम लक्सर नहीं जा रहे हैं इस ट्रिप में। हम इस वर्ष हमने अलेक्जेंड्रिया किया और कायरो किया और कायरो के आसपास की चीज़ें की हैं। लक्सर किसी और टाइम। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये सारा जो भी हमने इस बार आपको हम दिखा रहे हैं।